that the properties associated with charges at rest, students, are called electrostatics or static electricity. In this, we are going to learn about what happens when charge undergoes motion. It produces current. Okay, so we'll be learning about the concept related to current electricity, students. One thing you need to take care of it that the direction of electric field, students. The direction of electric field, students, is always from positive to negative. Electric field is always directed from positive to negative. Electron, students, always move in the direction opposite to the electric field. Do take care of that, students. Okay, so the motion of electron is always in the direction opposite the electric field. Whereas if I say for a positive charge, proton will always move in the direction of electric field. So motion of charge, students, motion of charge. Okay, of charge, we consider simply current. Okay, motion of charge we simply consider as current. And when the charge undergoes motion, students, energies were associated. Energy associated with a moving charge, which is in form of energy kinetic, is called electrical energy. Students, energy associated with a moving charge, which is actually in form of kinetic, students, is called as electrical energy, we consider. So any charge when set into motion, students, certainly it will have some current into it, we consider. Now, when I made it very clear, students, I said about a copper wire. A copper we consider is a good conductor of electricity, students, because it has free electrons, and all these particular free electrons are into this particular copper wire, and they are having random motion, students. Yani ye jo electrons hai, they all have random motion. So in this case, I can say motion of electrons. Sir, this you have told. Okay, is random. Okay. And this is in absence of external field. यानी electric field यहाँ पे है नहीं. There is no electric field. लेकिन जैसे electric field होगी तो क्या होगा? Electron will start aligning itself exactly in the direction opposite to it. तो ये जो drift है उसको हम क्या बोलेंगे? Initially it was in this direction, but now it has moved in this. What does that we call? This is called as drift speed. Friends, ये drift speed के बारे में मैंने बताया था. Yes, sir. Okay, now please pay attention. ये जो drift speed है, I'll consider with respect to VD students. Now please pay attention from here onwards. Now when you speak about with respect to your current electricity students, see students, the net current initial zero है, भले charge move हो रहा है, जितने electrons right hand side से आ रहा है through a given cross section students, उतने ही electrons left hand side से भी आ रहे हैं. तो net current inside the conductor is zero, लेकिन यहाँ पे drift हो रहा है, and drift speed is VD we consider. How is electric current defined, students? ये जो cylindrical part हमने दिया ना, ये है area of cross section, students. अगर कभी भी किसी ने area of cross section पूछा तो क्या होगा? A transverse cut given to a cylinder will expose the cross sectional area, students. तो कभी भी area of cross section होगा तो area of cross section, students, is simply pi r square, area of plane surface. Now, when I speak about current, how is current defined as? Students, current के दो mathematical relations हैं. One of them is called as current, is defined as the rate of flow of electric charge. And I is equal to dq by dt. मुझे बताओ students, ये कभी use करोगे और ये कभी use करोगे? Your first formula is I is equal to q by t, students, and in second case I is equal to dq by dt, students. When do you use the first one and when do you use the second one, students? Sir, for small time t, we use second. Second one for small time. Small time, sir, means. Okay. Students, ये जो current है ना, ये current तुम्हारा instantaneous. Current at a particular instant of time. और ये जो है फॉर्मूला, ये स्टेडी करंट है.
Students, current at a particular instant of time, और ये एक steady current है. Students, ध्यान से सुना, कोई भी डिवाइस तुम लेते हो स्टूडेंट्स, एंड सपोज अगर उस डिवाइस के अंदर मैंने स्विच ऑन किया, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, स्विच ऑन करने के बाद में does the electrical appliance starts working instantly? We'll say yes. लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी तुम स्विच ऑन करते हो तो magnitude of current, please listen carefully students, magnitude of current will take some time. Magnitude of current will take some time to reach to a particular saturation. Students, यानी जैसे टाइम बढ़ेगा, there is growth of current. There is growth of current. फिर at a particular time, students, the graph will be going parallel. यानी कुछ टाइम के बाद में तुम्हारा ग्राफ पैरेलल जा रहा है एक्स एक्सिस से. उसका मतलब क्या हुआ? अभी ये जो है ये तुम्हारा हुआ स्टेडी करंट. यानी कोई भी अप्लायंस के अंदर जो करंट, सपोज अगर तुमने ट्यूबलाइट स्विच ऑन किया है तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग ओवर देयर? स्टेडी करंट का. लेकिन इनिशियली उस स्टेडी को लाने के लिए इंस्टेंटेनियस करंट. यस, दैट्स इंस्टेंटेनियस. एंड इंस्टेंटेनियस करंट किसके लिए होता है? फॉर ग्राफ्स व्हिच आर नॉन यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ द ग्राफ हो गया. अगर सपोज मैं एक सीक्वेंस पास कर देता हूं तो ये क्या होगा सर? ये होगा y1, y2, करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1, x2. एग्रीड. इसी को अगर सपोज मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया तो क्या बन गया मेरा? इंस्टेंटेनियस बन गया. यानी एट टाइम्स, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, एट टाइम्स जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है उस टाइम पे तुम इंस्टेंटेनियस ले सकते हो. तो तुरंत स्टूडेंट्स बोलेगा सर उसका मतलब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन के लिए भी जा सकते हैं, क्यों नहीं? अगर सपोज मैंने बोला कि अ चार्ज, ध्यान से सुनना, अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a given cross section of a conductor, flowing through a given cross section of a conductor is a function of time. यानी q is a dependent variable. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, q is a dependent variable, time is an independent variable. यानी ये हुआ मेरा फंक्शन, ये हुआ मेरा वेरिएबल, ये हुआ मेरा फंक्शन और ये हुआ मेरा वेरिएबल. And now if I see the charge flowing through a given conductor, which is a function of time, is given by 5t square minus 2t plus 3 in coulomb. So can I find out the current flowing through a conductor in time 2 seconds? हाँ students, find out कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Find out the current in time 2 seconds. Can you get the answer for the students? क्या इसको solve कर सकते हो तुम? Yes. तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे कि नहीं करोगे? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes, तो sir. यानी इसके लिए भाई ये होगा इंस्टेंटेनियस के लिए होगा. यानी आई क्या होगा सर? डिफरेंशिएटिंग चार्ज यानी 5t square minus 2t plus 3 with respect to time I'll consider. So what exactly I will be equal to 10t minus 2 in ampere we consider. Time is equal to how much? 2 seconds. Again, in this case I can consider. So you can get your answer accordingly. क्या ये clear हुआ students? Yes. Okay, 10 into 2 minus 2, so that will be equal to 18 ampere. क्या ये clear हुआ students? हाँ सर, क्लियर है. यही चीज अगर सपोज यही चीज ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, यही जो कर्व पार्ट के ग्राफ के ऊपर सपोज अगर मैंने कोई स्ट्रिप लिया होता, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया होता स्टूडेंट्स, ये कर्व पार्ट के ग्राफ के ऊपर, नॉट कर्व, स्लाइटली स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ स्टूडेंट्स, मैं अगर ये स्ट्रिप लेता हूं, मैं एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं और फिर इस स्ट्रिप को मैं लेता हूं इनिशियल टाइम t1 टू फाइनल टाइम t2. Am I getting it? So in that case, can I consider the net charge flowing through it? अगर suppose मैंने ध्यान से सुनना, मैंने करंट तुम्हें दिया है, ध्यान से सुनना, और मैंने टाइम इंटरवल दिया है t1 to t2, यानी एक मैंने लोअर लिमिट दे दी है और मैंने अपर लिमिट दे दी है. So students, can you tell me the net charge flowing in that particular time interval? Yes. तो मिलेगा dq is equal to I into dt. Go for integration. Agreed? Yes, sir. तो Q इज इक्वल टू I into dt होगा. ये तुम्हारा लोअर लिमिट और ये तुम्हारा अपर लिमिट.
यानी स्टूडेंट्स कोई भी करंट को अगर तुम देखोगे ना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, करंट को अगर एक सूटेबल वैल्यू पे आना है तो इट टेक सम टाइम। यस, ये जो टाइम है ना स्टूडेंट्स, इट्स नॉट टू दैट एक्सटेंट वेरी लार्ज, इट्स वेरी स्मॉल। इट कैन बी एट टाइम्स नैनो सेकंड आल्सो स्टूडेंट्स। यानी इतने कम टाइम में करंट रीचेस टू सैचुरेशन, तभी तुम्हें फील नहीं होता है, रियलाइज नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि तुमने स्विच ऑन किया और पंखा शुरू हो गया, लाइट शुरू हो गई। वेरी लेस टाइम, सर समझा। within less time it will reach to saturation। और उसको सैचुरेशन होने में एक स्टेडी करंट होगा स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट को फ्लो करवाता है। So students, I made it very clear, अगर तुम बेसिक्स के ऊपर जाओ तो ये तो तुम्हारा स्टूडेंट्स करंट के हिसाब से मैंने दिया कि ये कभी यूज होगा और ये कभी यूज होगा। ये स्टेडी करंट के लिए I is equal to Q by T। अगर मैंने पूछा what is the charge, ध्यान से सुना, अगर मैंने पूछा what is the charge flowing through a given cross section of a conductor, सिर्फ क्रॉस सेक्शन, तो मैंने बता दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q is equal to प्लस और माइनस है नहीं। तो अगर मैंने पूछा what is the current flowing through a given cross section of a conductor, तो क्या बोलोगे, NE upon T। That's what your answer for current we consider। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए, स्टडी करंट के लिए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. मतलब बोलते हैं स्टेडी करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। Yes, they do ask, they will ask what is steady current, what is instantaneous current. Instantaneous current, students, is always a tangent for a given non-uniform graph at a particular instant we consider, and for instantaneous students always you have to go for differentiation. So it's differentiation and integration, now you are not 12th standard students, you must be knowing much more better in that case। A simple logic, differentiation कभी use होता है, integration कभी use होता है। अगर फिजिक्स रिलेटेड अगर तुम पूछो तो जहां पे ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है स्टूडेंट्स, जहां पे भी ग्राफ तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है और उस ग्राफ का अगर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है तो सिंपली वी गो फॉर डिफरेंशिएशन। हाँ अगर सर, उसी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। सो यानी एक बेसिक्स है व्हिच स्टूडेंट्स शुड नो इट। यूनिफॉर्म ग्राफ्स के लिए तो हम लोग यूज करते नहीं है। हाँ सर, सेम तभी स्लोप रहता है। तभी जाके how is instantaneous current is defined as? Students, instantaneous current is defined as limiting ratio of infinitesimal charge flowing through in time interval dt, however short the time interval may be। ये तुम्हारा हुआ definition for instantaneous current। Limiting ratio of infinitesimal charge crossing a given cross section in time very small delta t, however small delta t will be in that case। ये हुआ तुम्हारा instantaneous। Is this correct students? Clear? Yes. Now students, ये current किसकी वजह से है? तो simple students ये ध्यान में रखना, अगर current मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट चाहिए तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी ध्यान में रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है कॉज, और उसका जो इफेक्ट है वो है करंट। हमेशा ये ध्यान में रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो एक इफेक्ट क्रिएट होगी और उसको हम बोलते हैं करंट। एक सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, अभी एक सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, शायद ये तुमने कहाँ पे रीड भी किया होगा, सुना भी होगा। Suppose if you look into the parallel electric wires, students, अगर तुम देखोगे रेलवे ट्रैक पे जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, okay, दोनों पैरेलल वायर्स है, the approximate potential difference between them is around 11,000 kilovolts students। it's a very high voltage, several kilovolts के अंदर उसका होता है। तो शायद अगर तुम ट्रेन से ट्रैवल करते हो या कभी देखा होगा तो स्टूडेंट्स, अगर सपोज if a crow sits onto one of the wire, does he get shocked, does he die? नहीं। सर डज नॉट डाई। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस अगर उसका विंग या उसका बॉडी दूसरे वायर को टच कर देगा तो यस, बर्न हो जाएगा। यानी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, करंट नेवर फ्लोज बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल। मैंने क्या यूज किया वर्ड, अ पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स, तो ही करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं फ्लो। यानी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक करंट फ्लो होगा। हाँ सर। अगर सपोज कोई एक हाई टेंशन वायर है, दो वायर्स है, दोनों लटक रहे, भले वो लाइव वायर है
और तुम सपोज लाइव वायर को पकड़ के खड़े हो लेकिन तुम हवा में लटक रहे हो, कहीं मेटल को कांटेक्ट में आ रहे हो, ग्राउंड को भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, तो उसका मतलब क्या, यू कनेक्टेड टू पोटेंशियल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बाई चांस तुम ग्राउंड को टच कर दिए उसी टाइम पे, you'll get a nasty shock. That is what we consider. So current always flows because of potential difference. Therefore, we say potential difference is the cause and current is its effect. Current always chooses an easy path for it to travel. ये भी ध्यान रखना, करंट हमेशा एक इजी पाथ ट्रेस करता है। ये सारा सर्किट डायग्राम के लिए हेल्प होगा। जहां पे उसको इजी पाथ मिला वो वहां से पास हो जाएगा, रजिस्टर से पास नहीं होगा। क्योंकि द वर्ड रजिस्टर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रजिस्टर का मतलब जो तुम घर के अंदर गैजेट्स यूज करते हो वो सारे हैं क्या, वो सारे फिक्स रजिस्टर्स हैं। ट्यूबलाइट फिक्स रजिस्टर्स, फैन फिक्स रजिस्टर्स, एसी फिक्स रजिस्टर्स, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर फिक्स रेजिस्टेंस, यानी उनको एक ऑप्टिमम करंट चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर सपोज इफ a simple example on this, I have a bulb, students, I have a bulb over here. सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोले थे अभी बार? इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है स्टूडेंट्स। पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांसेप्ट है। अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया और फिर दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया तो फील्ड की वजह से आया ना, फील्ड की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट हुआ। हाँ फिर सर। उस चार्ज को मूव किया तो एक डिफरेंस इन पोटेंशियल क्रिएट हुआ, फिर उसको रिलीज किया तो वो मोशन में आ गया। तो सब कुछ फील्ड की वजह से होता है, फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है कॉज, और उससे इफेक्ट क्या होगा, करंट पैदा होता है। करंट भी किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से होता है। जब भी चार्ज मोशन में होंगे तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी, और जब भी चार्ज मूव होगा तो उसके साथ में एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, कोई भी मूव होगा तो उसको उसको वेलोसिटी होगा, तभी तो हाँ जाके नाम दिया ना। ये देखो ना, हाफ एम वी डी स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ m is mass of electron and vd is the drift velocity. इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कॉल्स। Okay students, अभी ध्यान से सुनना। I was speaking about current always chooses an easy path for it to travel. यानी ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, सपोज अगर ये बल्ब है, ये मैंने सॉकेट दिया है और यहाँ पे मेरा स्विच है, ओके। अगर मैं स्विच ऑफ रखता हूँ स्टूडेंट्स तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है बल्ब के अंदर, लेकिन जैसे मैंने अंदर इंसर्ट किया करंट फ्लो करेगा और बल्ब फ्लो करेगा ना। फॉर एग्जांपल ये जो वायर्स है, ये वायर्स को मैंने इंसुलेशन निकाल दिया इन वायरों का, and on this particular wire students I placed a needle, a metallic needle, students a metal, ये एक मेटल मैंने ऊपर डाल दिया। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, जैसे मैंने मेटल डाला क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। तुमने की को इंसर्ट किया स्टूडेंट्स, यानी क्या हो रहा है मालूम है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दे स्टूडेंट्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आएंगे वो सोचेंगे क्या मैं बल्ब में जाऊं, बल्ब में कौन सा वायर है, निक्रोम, alloy of nickel, chromium, iron and some proportion of manganese. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन सोचेंगे कि मैं यहाँ पर क्या मैं निक्रोम में जाऊं या ये नीडल में जाऊं। तो स्टूडेंट्स निक्रोम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करता इतना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक इजी पाथ चूज कर लेते हैं। तो इजी पाथ उनके लिए क्या होगा, सीधा यहाँ से मेटल। यानी क्या हुआ, तुम्हारा तुम्हारा कन्वेंशन करंट कहाँ से कहाँ गया, तो वो यहाँ से गया इधर गया और यहाँ पे आ गया। ये क्या हुआ, बाईपास कर दिया इसको, बल्ब से बाईपास, यानी बल्ब तो ग्लो ही नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, जीरो रेजिस्टेंस पाथ, जीरो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर्ड टू करंट, zero resistance path offered to current is called short circuit. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. करंट डिफरेंस इन पोटेंशियल की वजह से, कौन सा डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज अगर दो लेवल एक ही पोटेंशियल होंगे तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। एक सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे पास में सपोज अगर अगर तुम स्मॉल देयर स्मॉल कजिन इनटू योर होम, और शायद वो स्मॉल कजिन के पास में एक रिमोट कार होगी, तो उसके अंदर तुमने एक बैटरी डाल दी, उसके अंदर ड्राई सेल डाल दिया,
अभी उसने 2 घंटे 3 घंटे एट स्ट्रेच पूरा दिन चालू करके रखा, तो रात को क्या होगा, बैटरी ड्रेन हो गई। इन्हें हुआ क्या, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल था, जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस का गैप कम होते गया, एंड व्हेन इट बिकम इक्विपोटेंशियल, when it becomes equipotential, will there be any flow of charge? No, there is no flow of charge. That means current never flows on an equipotential surface. Current never flows on an equipotential surface. Students, जब भी दो ends equipotential होगा, current कभी नहीं flow होगा. Current always flows from where to where, from high potential to low potential. तभी जाके हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किया था, तो अर्थिंग का कंसेप्ट क्यों लिया था? चार्ज बॉडी जो था, जो चार्ज बॉडी था, उसका पोटेंशियल ज्यादा, उसका ज्यादा चार्ज इंड्यूस था। अर्थ को हम क्या कंसीडर करते थे, जीरो पोटेंशियल। तो एक हाई पोटेंशियल हुआ, लो पोटेंशियल हुआ, सो द करंट वाज सेट टू फ्लो। करंट कैसे फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो उस तरफ गया, तो कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। So current always flows because of potential difference. If a potential difference is the cause, current is the effect. And what is the reason for electric potential difference? Electric field. Sir, हाँ. can you explain that equipotential or what you So said? equipotential surfaces का मतलब क्या? Simple अभी मैं अगर suppose अगर if I happen to go for electrostatics के अंदर भी students ध्यान से सुनो students, अगर suppose मैं कोई charge sheet लूँ students, in fact अगर मैं कोई charge एक sheet लेता हूँ students which is electrically charged, okay, positive charge, and the charge is uniformly distributed on the sheet. Agreed? Suppose Yes. now if I place another charge, another sheet, students, exactly at an equal distance from it. और ये सारे मैंने sheets लिए students. All these sheets I have kept it equidistant from each other. सारे को मैंने equidistant पे रखा हुआ. All are at equidistance. And all of them having what? Same amount of charge. 3 and 3, 6 and 3, 9. यानी यहाँ पे भी 9 coulombs, यहाँ पे भी 9 charges है, यहाँ पे भी 9 charges. So what is the potential of this? And what is the potential of this? Same. Yani, if I happen to consider the field lines which are parallel to each other and they are equidistant from each other, the two surfaces are then called as equipotential surfaces. Charges never flow in an equipotential surface, we consider. तो यहाँ पे हम लोग ने अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इक्विडिस्टेंस पे रख दिया एंड द मैग्नेटिक चार्ज मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 सारे इक्विपोटेंशियल हो गए, करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा. दैट्स अ कांसेप्ट वी कंसीडर इज ओवर हियर फॉर इक्विपोटेंशियल. करंट कभी फ्लो होगा जब भी डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा. सपोज अगर यहाँ पे मैंने बहुत सारा चार्ज इंड्यूस किया स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैंने बहुत कम चार्ज इंड्यूस किया, लेकिन अगर मैंने बीच में एक कॉपर रॉड बिठा दिया तो क्या होगा, करंट विल फ्लो. इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, कन्वेंशनल करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? Sir. Are you all getting it, students? Yes, sir. Arsh is getting it. What about Deep? What about you, Jai? Yes, sir. Okay, Norman, Jai. Yes, sir. What about you, Norman? Norman? And why were you absent in the last lecture, Norman? Norman Pathan? Norman, can you hear me? Riya, what about you? Getting it, Riya? Sanika? Yes, sir. Okay, Tariq? Yes, sir. Much? Josh? Josh, are you there? Norman? Yeah, you're not, you can't hear me or what, Norman? No, sir. Actually, I was speaking, but the net was yes, sir.
Okay, and last lecture also you missed out. Sir, I was not feeling well last week. क्या हो Cold. गया? Sir, something viral because of weather. Okay, fine. Take care of your health. Yes. Sir, I saw the recording of it. Okay, fine. नहीं हम लोग So, करेंगे स्टूडेंट्स. मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैपेसिटर्स के अंदर ही प्रॉब्लम हो रहा है. Today also I was at the center, blue house, red house, and everybody was after capacitors only. Students will do one thing, हम capacitors के problems करेंगे students. I want to work out with you all with good problems. और होगा तो हम HCV के problems करेंगे students. जितने diagram वाले हैं ना students, I'll try to pick up the coming lectures. सर कैपेसिटर थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा है तो थोड़ा इजी लगता है. हाँ, तो रेजिस्टेंस के अंदर आएंगे तो और इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स. वो रेजिस्टेंस के साथ में हम करेंगे तो भी इजी हो जाएगा. सर जो 9th 10th में पढ़ा था एक तो मतलब ऐसे पढ़ा था सर डायग्राम. हाँ लेकिन सिर्फ हाँ तो लेकिन थोड़ा बहुत अगर ज्यादा हो जाता है तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट इट कि कौन से सीरीज में पैरेलल में होता है. क्योंकि उसका थ्योरी दिया नहीं है ना, मॉड्यूल के अंदर थ्योरी नहीं दिया उसको कुछ. डायरेक्टली थिंग्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड. yes, sir, directly. कैन आई इरेज द स्टूडेंट्स? सर Yes, हाँ sir. ब्रो. सर एक रिक्वेस्ट था हाँ बोलो. सर. वो आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं मतलब अगर जो आप टॉपिक पढ़ाते हो ना सर उसका नाम एक बार लिख सकते हो आप ऊपर फिर बाद में. अच्छा यानी क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज होता है ना. ओके फाइन फाइन. यानी जो जो कंसेप्ट पढ़ा रहा है उसका नाम है फिर आगे. हाँ सर. हाँ अभी मतलब. हाँ ओके फाइन. सर हो गया ये. ओके. सर आप खारघर ब्रांच पे आते हो क्या? क्या? सर खारघर ब्रांच पे आते हो ना आप? नहीं मैं तो वेस्टर्न साइड रहता हूँ. आप लोग कहाँ से हो? सारे कारगर साइड से हो स्टूडेंट्स? सर नहीं नेहरू. मैं खारघर. अच्छा नेरुल पे हो. सर पर आप पहले आते थे ना नहीं शायद. नहीं नहीं. आई गॉन ओनली वंस. एक ही दफा. सर तो उधर कौन आता है? शायद होंगे सोम सर होंगे और एक सचिन सर होंगे. ओके. हेमंत सर यहाँ पे गोरेगांव में यहाँ पे मेरे साथ में है. हेमंत सर ही स्टेज इन गोरेगांव. एंड सोम सर आई फील लाइक दैट ही स्टेज ऑन द सेंट्रल साइड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. शायद मुझे क्लियरली पता नहीं है. समवेयर आई फील इट. Okay students, now please pay attention. Now we'll go for students relation for drift speed. तो अभी हम बताएंगे drift speed के बारे में students. अभी तेरा ये आ गया heading. Okay, drift speed and current density का concept. Both are vectors students. अब ये drift speed I told you very clearly students. Okay, the electrons which are there in the cross section of the conductor students, they are actually considered they are random. लेकिन जैसे electric field setup होगी ना students, so they'll start moving. Students, इनका जो random motion होगा ना, that is very very large. Electrons का जो random motion है, that is very very large in that case. But due to the external electric field, they all start aligning in one direction. Now suppose अगर मुझे formula चाहिए students, ध्यान से सुनो students. If I ask you what is the charge flowing through, अभी पूरे mathematical relations दे रहा हूँ students, अभी सारे formulas आने वाले हैं. So do keep in mind please. Charge flowing through cross section of a conductor. Cross section of a conductor, that means this is the area part of it. Area of plane surface. What are the charge flowing through it?
So the formula for charge flowing through it is equal to what? N times E. Since where N stands for number of charges, number of electric charges, and E stands for 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs charge on an electron. An electron is what charge? Negative charge. ये ध्यान में रखना students. Charge का magnitude ये है, nature negative है. अगर मैंने पूछा students, how many electrons have a total charge of 1 coulomb? What is the answer? Can you tell me this, students? How many electrons will have a total charge of 1 coulomb? 6.67 into. नहीं मेरे भाई, गलत है. 6.25 into 10 power of 18 electrons. हाँ सर. ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिला के क्या होगा? चार्ज 1 कूलम होगा. एग्रीड? तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, Q is equal to N times E, ये है चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स जीरो है तो उस टाइम के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन मैंने क्या बोला? रैंडम. यानी उनकी जो वेलोसिटी होगी ना स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is around 10 to the power of 6 meter per second. Students, is it a small velocity or very high velocity? Not students? Very high. सर है. जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की तो इलेक्ट्रॉन विल गो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट. तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है विच इज वेरी स्मॉल. आई गेटिंग इट? इट इज सेड दैट द ड्रिफ्ट स्पीड इन अ कॉपर कंडक्टर, ये कौन सा कंडक्टर के लिए है? कॉपर कंडक्टर के लिए is around 10 to the power of minus 4 to 10 to the power of minus 5 meters. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये बहुत हाई स्पीड है या बहुत ही स्मॉल स्पीड है स्टूडेंट्स? सर स्मॉल है. लेकिन जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, सपोज अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में ड्रिफ्ट करना शुरू कर दे तो कैन आई से द नेट करंट कैन बी इंक्रीज्ड? हाँ स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा? सर आप फॉर्मूला डाल दो ना. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. सपोज अगर मैंने कोई कॉपर कंडक्टर लिया स्टूडेंट्स, ये कॉपर कंडक्टर लिया, एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली. ये कॉपर कंडक्टर है, उसका एक एंड मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव पोटेंशियल से, दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया मैंने नेगेटिव पोटेंशियल से. ये तुम्हारा की है, की को मैंने क्लोज कर दिया है. एग्रीड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल होगा. ये अभी क्या होगा सर? सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स. दे ऑल मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. But are they passing through the cross-sectional area? Yes. Are they moving from one end to the other end? Why not? So Yes. now if I ask the students, what is the net charge? What is the net charge flowing through volume of conductor? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Q is equal to what? Charge flowing through a cross-section is any. वॉल्यूम के लिए पूछा है स्टूडेंट्स मैंने, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे सर? वॉल्यूम के लिए तो आप बेस एरिया ले लोगे, यानी ये एरिया आएगा और ये लेंथ हो गया. तो कैन आई से माय नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू विल बी इक्वल टू व्हाट? n into E into A into L. क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes. यस सर. ये टोटल वॉल्यूम के लिए हो गया स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन के लिए होगा ना. अगर इसको याद रखना है तो स्टूडेंट्स, हाउ डू दे रिमेंबर? क्यू ना ले. हाउ डू स्टूडेंट्स रिमेंबर? क्यू ना ले, है ना. अगर तुम कहीं बाहर जाते हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ में आना चाहता है तो क्यों ना ले, क्यों ना ले. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था? नेट चार्ज फ्लो करेगा. यस, बढ़ सकता है. स्टूडेंट्स ये देखो ना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. मैंने क्या बोला? व्हाट एग्जैक्टली द ड्रिफ्ट स्पीड वी कंसीडर? ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी लेस. But can there be more current flowing through it? Why not? There can be more current. How do we come to that drift speed? What is drift speed? So drift speed also we can consider as what? Simply we can consider as what? The answer there, students. Speed is defined as distance covered by the electrons along the cross section of a conductor
and the time taken for it to cover the distance. So what exactly time taken? L upon VD. My students, the time interval for the electrons to move from one end of the cross section of the copper conductor to the other one is L upon VD. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Now suppose government पूछा what is the formula for current? The answer is no. What is the formula for steady current flowing through it? क्योंकि यहाँ पे मुझे steady current ही चाहिए students. मैं instantaneous के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. Can you give the formula for steady current? तो तुमका आंसर steady current is rate of flow of electric charge. तो I is equal to Q by T. Can I substitute this T back over here? तो क्या आंसर होता है मेरे? Sir, I is equal to Q upon T. T की जगह पे कहना है L and D. No students? हाँ sir. Agreed. What exactly the charge flowing through the given volume of the conductor? So can I say N into E into A into L into VD upon L and I will get. Now can you tell me what is the net current flowing through a given volume of a conductor? Net current flowing through a given volume of the conductor. So current is equal to N A V E. That's the formula for current, which is in ampere. Students, ये किसका है formula? Students, ये है current flowing through the entire volume of the conductor. Entire volume of the conductor, students. How do you remember? Navi. Q ना ले और ये नावी. Those people, suppose अगर तुम हिंदी में जो शेव करते हैं बाबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हो? नावी. नावी. Now see, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? Current अगर तुम देखोगे तो वहाँ how can you say that the current is more in that case? सुन ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था? Drift speed, is it very large or very small? So very small. ये तो very small. Suppose अगर मैंने 1 ampere of current दिया, students 1 ampere of current दिया, can I say how many electrons we consider as 6.25 into 10 raised to 18? Students ध्यान से देखना, 10 raised to 18 के साथ में 10 raised to -4 multiply करो, and we also charge onto it we consider. We can consider that case. So can I say I can have some amount of current? Yes, we can have. That current can be in milliamperes. It can be in microampere. We can get the current in ampere also, depending on the area of cross section. So we can increase the magnitude of current in this case. तो अगर किसी ने पूछा what is the net current flowing through given volume of the conductor? It's N into A into B. क्या ये clear हुआ students? Yes. Now, from here onwards, how do I go with current density? students current density है क्या? अगर suppose मैं drift speed को subject बना दूं, ध्यान से सुना students, drift speed को subject बना दिया, तो क्या होगा? सर करंट को एक तरफ देखो, number of electrons A into charge on one electron. Students, current per unit area, current flowing per unit area of cross section. ध्यान से सुनना, current flowing per unit area of cross section is called current density. What is the name of here? It's called current density. Can I say drift speed is equal to current density upon N into E? So what's the formula for current density in terms of vector N into E into V into D? What is the direction of current density, students? The direction of current density is always what? In the direction of drift speed. Students, electrons कहाँ से कहाँ जाते हैं? Negative to positive. अगर drift speed उस तरफ है, तो current density यानी current through this cross section area will be in the same direction. ये जो current density लिखते हो ना, current upon area, ये actually area vector है. तभी जाके हम इसको vector ले सकते हैं. यानी number of charges, ध्यान से सुना, number of charges passing through a given cross section of the conductor. And students, area vector is always normal to the surface. तो ये हुआ तुम्हारा concept of current density. Current density जब भी किसी ने पूछा तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? It's the current flowing the current flowing through a given cross section of a unit cross section of a conductor. इसका unit क्या होगा? Ampere meter square inverse. क्या ये mathematical relations clear है students? Yes. Yes, sir. Can I erase the students? No, sir. Just try to put a response.
Sir, can you explain that what you read that charge of 1 coulomb? That how many अभी sir, after that. एक second, हाँ एक सिंपल कैलकुलेशन करो चलो स्टूडेंट्स। ड्रिफ्ट स्पीड अगर मैं 10⁻⁴, अभी मैं सपोज एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ टोटल, सपोज इफ आई से करंट ऑफ 1, मैं 1 एम्पियर की बात कर रहा हूँ, 1 एम्पियर की करंट के अंदर, आई गेट इट। if I say in 1 ampere, how much is the net current flowing in that case? Okay, the net current flowing through again, let us find out current। चलो हम current find out करते हैं स्टूडेंट्स, I find out करते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस, अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ले लिया स्टूडेंट्स, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10⁻⁹, तो -19 + 18 कितना होगा? -1 होगा। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी देखो ड्रिफ्ट स्पीड कितना है? -4 -1 कितना होगा? 10⁻⁶ हुआ। हाँ स्टूडेंट्स, सर -4 कैसे हुआ? आपने लिया क्या? मैंने -4 लिया ना, ड्रिफ्ट स्पीड मैंने -4 लिया और -1 ऑलरेडी था पहले, तो -5 हुआ कि नहीं? हाँ आया ना। अभी सपोज मैं वायर के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वायर के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी वायर तुम लेते हो स्टूडेंट्स, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें पता होता है ना? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा लिया इन दैट केस, तो व्हाट हैपेंस? मोर करंट विल फ्लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो लेस। स्टूडेंट्स यानी तुम्हारा वेरिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरिएशन क्या होगा? अगर सपोज मैंने एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया तो भी मेरा आंसर ये 10⁻⁶ है। In 1 meter square, we can consider. If I happen to go for less amount of area, what happens in that case? What happens in that case? One meter square, students, how many millimeter? 10⁻⁶. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तुम्हारा करंट इंक्रीज हो जाएगा। Are you getting students what am I trying to say? वापस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने? What are the number of charges? Agreed? 6.2। हाँ, E का वैल्यू क्या? 1.6 into 10⁻⁹। हाँ सर। -19 + 18 कितना होगा? -1। अभी हम ऑर्डर ही लेते हैं, बाकी की वैल्यूज भूल जाओ ना। VD कितना लेता हूँ मैं? सर आपने कंसीडर किया क्या वो वैल्यू रहता है? या दैट मींस मैं ये कंसीडर करना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, भले ड्रिफ्ट स्पीड तुम्हें 10⁻⁴, 10⁻⁵ दिखाई देती है स्टूडेंट्स, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज लार्ज। The magnitude of current is large. Are you getting it? And that all depends on the area of cross section also accordingly. And that gives you the total magnitude of current flowing through it. Agreed? यस।
Can I erase, students? Sir, 1 minute, that last part. Sir, done. Sir, current is a scalar quantity. Of course, it doesn't obey his vector addition methods. Since current इलेक्ट्रॉन्स रैंडम है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी डायरेक्शन है ना, करंट तो तभी पता हो रहा है, और करंट का जितना भी ड्रिफ्ट हो सारा यूनि डायरेक्शनल है। करंट फिर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सारे एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉस को ओबे नहीं करता है। दैट इज व्हाई वी कंसीडर टू बी एज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स लॉ का मतलब ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज को ओबे नहीं करते। Now, suppose if I give you students, can you get the answer for this? Okay. Suppose if I give it to you, a metallic wire. Okay. एक मैंने metallic wire दिया students. Metallic wire of diameter मैंने दिया है 0.02 meter students. A metallic wire of diameter is given to 0.02 meter, contains 10 raised to 28 free electrons. Okay. So free electrons per cubic meter, I can run on per cubic meter. So number of free electrons I can consider students as 10 to the power of 28 per cubic meter. Agreed? मेरा question here students, find the drift velocity. Find the drift velocity for these particular free electrons having an electric current. Having an electric current of 100 amperes through it. Having an electric current of 100 amperes through it. Any question clear, students? The Yes. diameter of the wire is 0.02 meter. Number of free electrons is 10 to 28 per meter cube. Find the drift rate. Current is given to you. तो करंट 10 एम्पियर है ना? Current is in ampere. सर ये बस कंडक्टर के लिए होगा ना? Yes. बल्ब के लिए नहीं होगा ना? नहीं, उसके लिए वहां पे रेजिस्टर आएगा ना। हाँ सर। सर करंट इज 10 एम्पियर ना? Current is 10 ampere.
Okay, that's an approximation. Absolutely correct, Norman. Anybody else? Sir, 1 minute. Deep, where are you? Harsh is getting it. Norman has got it. Deep, are you there? Deep. Josh. Sir, I'm getting it as 2 into 10 to the power minus 4. Okay. -4 आएगा कि -5 आएगा? Chahana Walia, are you there? Both of them are not there. Chahana Walia. Yes, Harsh, are you getting the answer? Sir, 1 minute. Deep, order देख उसका power बराबर है कि नहीं? You got it -5 or -4? Sir, Yes. sir, 1.99 into 10 to the power minus 5. Minus? Sir, 1.99 into 10 to the power minus 5. Absolutely correct. So the answer will be in terms of 1.9 was so 1.99 you can consider, or 2 approximately, into 10 to the power of -5. अभी formula क्या होगा students? यहाँ पे formula क्या होगा? VD is equal to I by NEA. I by NA. Absolutely correct. तुम्हारा जो ड्रिफ्ट स्पीड देखो ना, ड्रिफ्ट स्पीड पूछा है तो ड्रिफ्ट स्पीड कैन बी रिटन एज व्हाट? करंट डेंसिटी. I can write in terms of upon NE, and current density is what? Current upon area. Yes. सिर्फ तुम्हें चार्ज नहीं मालूम, चार्ज तुम्हें पता होना चाहिए. What is E? 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Yes. These students? Yes, sir. Okay. Now, students, the next concept what you're speaking about is, students, average time. This is the next subtopic, students. We are going for average time between two successive collisions, students. Because whenever electrons drift, of course, they're going to collide. So we are trying to find out, students, the relation for average time, okay, which can be represented by tau. इसको ऐसे tau या t भी लिख सकते हो, लेकिन कहाँ पे तुम अगर सपोज HCV देखो या कोई दूसरी बुक देखो, DC पांडे तो वहाँ पे ये tau दिया होगा. ये एवरेज है स्टूडेंट्स, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, between two successive collisions. Let us go for that part of it. Now please pay attention, students. अगर मुझे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन करना है या समझना है तो सबसे पहले मुझे चार्ज को मूव करना पड़ेगा, तो ही वो कोलाइड करेगा. मूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? दे मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स, can you find out the acceleration possessed by this moving electron? तो तुरंत बोलेगा हाँ सर, E is equal to F by Q या F by E, and F is equal to M into A. हाँ स्टूडेंट्स, तो कहना है ना acceleration is equal to E into Q by M. हाँ सर. ये क्लियर हुआ?
acceleration being a vector quantity to electric field, because direction of acceleration is always in the direction of electric field, and that is q by m. अभी ये q by m किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये जो q by m है, that is it's a ratio of charge to mass. Charge to mass किसका है? ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम. The ratio of charge to mass we consider is called specific charge. Is called specific charge, students. And specific charge of an electron is Sir, one. we know that both quantity. Pardon? Sir, we know Q also and M also of electron. No? So we can, Yeah. that is constant. No? Yes, that is constant. ये constant है. Q by m हमेशा constant होता है. So it's 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kilogram. ये constant value है. ये specific charge of an electron. Now let us find out the average time between two successive collisions. Students, that is we are speaking about the variable tau. Students, how do you go about with this? Students, अगर मुझे average collision के बारे में बात करना है students, so how do you consider? How do you consider? Students, we know that that's the acceleration of a electron is velocity with respect to time. Students, यानी ये है average acceleration is the ratio of average drift speed and is the average time. Average time between what? Between the two successive collision. I getting it? That's how we consider. अगर suppose मुझे टाइम के बारे में चाहिए तो how do you go about it? तो सबसे पहले तुम्हें एवरेज स्पीड के बारे में फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा सर? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू a into tau. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? A का फॉर्मूला क्या है सर? वी हैव इट इन फ्रंट ऑफ इट. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट्स E into Q upon small m into tau. What is drift speed? Can you run the drift speed in terms of current density? Why not? Drift speed is current. अभी इसके पहले ही हम लोग ने न्यूमेरिकल किया था स्टूडेंट्स. हाँ sir. What is the drift speed will be equal to what? Sir, it's J current by density upon what? Meaning J by N ही आ गया था हमें. Is that clear, students? क्या Yes, ये sir. clear हुआ students? Now suppose अगर ध्यान से देखना students, ये एक मेरा इक्वेशन है जहां पे मैंने ड्रिफ्ट स्पीड को E Q tau by m लिया है और दूसरा मैंने ड्रिफ्ट स्पीड को J by N लिया है. सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 देता हूं तो स्टूडेंट्स कहने से लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल. तो मैं RHS को इक्वेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स. So what exactly the formula for average time? Students, the average time between two successive collisions is actually given by what formula? So अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, E Q tau upon m be considered is equal to J by N. So what exactly tau we can write in terms of it? It's E. This is also charge. Students, this is also charge. Can I say it's E square N? We consider, sorry, will be m into J upon E into N into E square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, ये क्या है Q? This Q is nothing but equal to E. That is equal to how much? 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. तो मैंने E square डाल दिया यहाँ पे. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. अभी अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, if in case if I happen to write down my relation for electric field intensity in terms of it, तो electric field intensity यानी ये तुम्हारा इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स टाउ के लिए. अगर किसी ने भी पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज टाइम, तो ये हुआ तुम्हारा एवरेज टाइम. यानी ये क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ना स्टूडेंट्स, when they are trying to drift through the cross section of the conductor, students, they collide with other electrons as well as the atoms of the conductor. तो अगर सपोज एक कोलिशन के बाद में दूसरा कोलिशन होता है तो व्हाट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन? देन द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन इज व्हाट वी कंसीडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कोलिजन किसके बीच में होता है? बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम वी कंसीडर. Okay. Are you getting it? It's between them. There is some collision that takes place all the time. तो उसका एवरेज टाइम हम लोग ने निकाल दिया. And that average time will be m into J E into N into E square. अगर मैंने E को सब्जेक्ट बना दिया तो what exactly इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? So इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा it will be J M upon N into E square, and this is average time. What is M? Mass of electron. What is N? Number of electrons. What is E? Electronic charge for an electron, students.
And always students, the average time between two successive collision all the time remains constant. Since average time between two successive collision can be considered to be a kind of a constant. And तुम्हारा electrical intensity simply depends on current density. तो ये तुम्हारा electrical intensity with respect to current density है. तो जब भी तुम्हें problems दिया between average time, students always go for this particular relation. क्या ये clear हुआ students? क्लियर है सर. Now when you speak about with respect to your units, students, अभी हम जाते हैं units के ऊपर students. So what exactly we consider for unit? अगर तुम unit की हिसाब से जाते हो students, so what exactly? Unit, SI unit. अगर किसी ने पूछा of electric current, उसमें what is the SI unit of electric current? Students, it's ampere. Agreed? Students, can you tell me what is the CGS unit of electric current? कोई बता सकता? हाँ students. MKS or SI is ampere. What is CGS unit? मिली एम्पियर छोटा यूनिट है, माइक्रो एम्पियर छोटा यूनिट है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, ये सीजीएस नहीं है. 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर. ठीक है, ये सब मल्टीपल्स है. मैंने सीजीएस पूछा. एम्पियर कैन बी कंसिडर एज माय एनकेएस यूनिट आल्सो, व्हिच इज आल्सो एसआई यूनिट. सीजीएस क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स. सर वाट. हाँ क्या बोले? I want CGS unit of electric current. तो तुरंत बोला ना सर, I is equal to Q by T. स्टेडी करंट का फॉर्मूला. अगर ये 1 एम्पियर का करंट होगा तो स्टूडेंट्स ये 1 कूलम होगा, चार्ज 1 कूलम होना चाहिए, टाइम 1 सेकंड होगा. आया ना? हाँ सर. ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, 9वीं या 10वीं में पढ़ा है. लेकिन मैंने पूछा सीजीएस यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, तो उसके लिए तुम्हें सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, और वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. स्टैट कूलम. Start column, yes. स्टैट कूलम अपॉन 1 सेकंड. 1 स्टैट कूलम हो, यानी ये क्या होगा? स्टैट एम्पियर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर अलग नाम भी है क्या कुछ? क्या बोल रहे हो? सर अलग और नाम है क्या है, मतलब स्टैट कूलम? नो नो नो. ओके, ओके. that is called electrostatic units. This is called as current static unit. ESU. This is CSU. Potential difference का यूनिट क्या स्टूडेंट्स? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बारे में बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो सबको पता है, वोल्ट. दिस इज यूनिट. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? वोल्ट मीटर इनवर्स. करंट डेंसिटी का यूनिट क्या है? करंट अपॉन एरिया, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स. Tau is the average, which is always in second. Agreed. Drift speed is always in meter per second. Charge is always in coulomb and start coulomb. यानी सारे यूनिट्स ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. Can I erase this part now? सर. Yes. Can I erase it students? सर 1 मिनट. Okay.
Can I erase? सर 1 मिनट सर, आप जब समझे थे ना थोड़ा लिखना डिफिकल्ट हो जाता है। Okay. अच्छा. सर डन। Okay. सर एंड वन डाउट वाज देयर Huh? सर, everywhere I have written average. Why speed I have written? Sir, you have written everywhere average, na? Average speed, average. हाँ. हाँ. Sir, So that of course, it's a change in distance ना. अगर मैं two successive collision लेता हूँ, are you getting it? So I Okay. need to go for delta L by delta T. Yes, sir. That is why. Okay. And in that case, the time we consider will be the average time taken for those particular two successive collisions. Okay, sir. Understood. Done, sir. Okay. Now, please pay attention regarding how exactly the current and the flow of charge we consider students. अगर मैं बात करूँ current electricity के लिए students, तो you need to have an electric potential difference students. और वो electric potential difference कौन provide करता है? It's an electric cell. So electric cell के बारे में हम बात करेंगे students. हर एक electric cell का खुद का एक EMF होता है. Do you remember students what does EMF stands for? Sir, electromotive force. Yes, electromotive force. Okay students. ये हम बाद में पिकअप करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि करंट हाउ इज इट पॉसिबल, ये सेल कैसे क्रिएट करता है और वो एक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेटअप करता है स्टूडेंट्स. लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ये भूलना नहीं. Sir, E cell मतलब? Pardon? Sir, E मतलब? इलेक्ट्रिक सेल. Okay. ओके, इलेक्ट्रिक सेल. सेल तो वो भी होता है ना जेल के अंदर भी, गेट. तो इट कैन बी इलेक्ट्रिक सेल. ओके, अभी ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बाद में पकड़ूंगा स्टूडेंट्स. लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मालूम है स्टूडेंट्स, कि ये जो करंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज बीन क्रिएटेड. हम बात कर रहे हैं ईएमएफ का सोर्स. जैसे हार्ट तुम्हारा पंपिंग ऑर्गन है टू सेंड ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी, वैसे ही चार्ज को फ्लो करने के लिए सोर्स चाहिए, तो वो है बैटरी, वो है सेल. तो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, तो एक सिंपल वोल्टेज सेल के बारे में बताता हूँ. एक सिंपल वोल्टेज सेल, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, और ये तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जाकर इसका यूज होगा फॉर्मूलाज के लिए. दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय अलेक्जेंडर वोल्टा स्टूडेंट्स, सिंपल वोल्टेज सेल. अभी ये है क्या स्टूडेंट्स? सपोज अगर मैं बीकर लेता हूँ और इस बीकर के अंदर मैंने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. स्टूडेंट्स कहने से यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन और सल्फेट आयंस होंगे. हाँ स्टूडेंट्स. हाँ सर. अभी यहाँ पे सेवरल हाइड्रोजन आयंस होंगे, तो मैंने क्या किया, ऐसे दो हाइड्रोजन आयंस को मैंने साथ में ले लिया.
अभी एक्चुअली H को हम H प्लस ही लिखते हैं, कभी ऐसे ऐसे लिखते नहीं है, ये गलत लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, H प्लस प्लस मैंने गलत लिखा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 हाइड्रोजन आयन साथ में they are existing in the fluid. Now what I'll do, I'll take 2 electrodes students, यानी मैं एक simple pure plates ले रहा हूँ students, copper and zinc, 2 metallic plates, one is copper and one is zinc. और ये जो solution है it's dilute sulfuric acid which has free ions. मुझे ये बताओ students, जैसे जैसे मैंने दोनों प्लेट्स को इमर्स किया into this particular solution of dilute sulfuric acid, मुझे ये बताओ where exactly sulfate ions will get discharged and where exactly hydrogen ions will get discharged? बता सकते हो? Norman Sir, H B. plus will be go on zinc electrode. Okay, is he correct? Norman? Yes. Deep? Okay, Deep, is he correct? Deep? Deep, are you there? Can you reply? Students, hydrogen will never move at zinc. Sulfate ions will move towards zinc. And hydrogen will move towards the copper. Students, reactive series में zinc is in the higher as compared to that of copper. तो ये रिएक्टिव सीरीज के हिसाब से देखोगे तो जिंक का सल्फेट के साथ में एफिनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक कंबाइंस विद सल्फेट स्टूडेंट्स टू फॉर्म जिंक सल्फेट, और जैसे वो जिंक सल्फेट बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज कर देगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. वैसे ही हाइड्रोजन आयन जो है ना वो जाते हैं कॉपर के पास। अभी देखो हाइड्रोजन आयंस के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर सपोज मैंने 2 हाइड्रोजन आयंस लिए तो क्या करेगा, ये जो कॉपर है अपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा इस सोल्यूशन के अंदर, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। एंड व्हाट एक्चुअली इट फॉर्म्स इनटू, इट फॉर्म्स इनटू बबल टू फॉर्म H2। जैसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। यानी देखो ध्यान से देखो, सल्फेट अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक को दे रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सोल्यूशन में वापस भेज रहा है। तो स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक सो, charge the magnet of charge from the solution to the plate and the magnet of charge from the plate into the solution all the time remains constant, और ये होता रहता है। यही तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर रहा है स्टूडेंट्स। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस और अच्छा कभी होगा, जब भी तुम बल्ब कनेक्ट करोगे। जैसे तुमने बल्ब कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, देखो नाउ वी हैव कॉपर वायर कनेक्टेड ओवर हियर एंड वी हैव कॉपर वायर कनेक्टेड ओवर हियर। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाना मूव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, वापस डिस्चार्ज हो गए, सोल्यूशन से वापस ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये कौन सा फ्लो होगा, ये कौन सा फ्लो होगा सर, ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। कन्वेंशनल फ्लो कैसा है, कन्वेंशनल फ्लो इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। So charge students, charge externally and charge internally flowing through the given cross section of a conductor remains same. So current externally and current internally students remains the same. क्या ये concept clear हुआ? Yes. तभी जाके स्टूडेंट्स जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो अगर किसी ने पूछा, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने पूछा कि तुमने बल्ब कनेक्ट किया है, प्लीज पे अटेंशन, तुमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है ये नोवेनो सेल के साथ में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। और अगर किसी ने तुम्हें पूछा कि बल्ब के अंदर 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो सेल के अंदर भी कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। The charge externally and charge internally per unit time remains constant, so current remains constant. This is a simple concept of
a simple voltage cell. तो कंसिस्टेंटली ये चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंटली अंदर चार्ज मूव हो रहे हैं, लेकिन इनका मोशन विगरस कभी होगा जब भी तुम लोड कनेक्ट कर दोगे। यानी देखो सल्फेट आयंस जिंक की तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन कॉपर की तरफ जाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल तुमने ऐसा कोई सेल लिया स्टूडेंट्स, एक नोवेनो सेल लिया स्टूडेंट्स, और तुम्हारे पास में रिमोट कार है। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, तुमने उस नोवेनो सेल को रिमोट कार के अंदर डाल दिया और शायद वो स्विच ऑन के ऊपर है, लेकिन तुम कार को यूज ही नहीं कर रहे हो, कार को भगा ही नहीं रहे हो, घर के अंदर एक कॉर्नर में पड़ी हुई है कार। फॉर 1 month इट इज केप्ट जस्ट लाइक दैट। क्या होगा? कैन आई सी द खत्म हो जाएगा। हाँ, सेल के एंड्स में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। यानी चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए तुमने कार को शुरू ही नहीं किया। That means there is no further use of any charge into the external circuit. तो क्या हुआ? एक्सेस ऑफ चार्ज जब भी जमा हो जाता है तो क्या होगा? वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, वो लीक होना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई कभी कभार तुम देखते हो ना, कोई सेल को तुमने तुम्हारे ड्रॉर में रखा होगा तो शायद वो लीक हो जाता है या करोजन लग जाता है उसको, बिकॉज द फ्लूइड स्टार्ट्स कमिंग आउट इन दैट केस। ये कब तक फ्लो होगा? कब तक करंट फ्लो होगा? जब तक दोनों लेवल इक्विपोटेंशियल नहीं हो जाते, इट विल गो ऑन। सो द डिफरेंस इन पोटेंशियल कॉजेस द करंट टू फ्लो। ये जो पॉजिटिव है ना स्टूडेंट, देखो ये कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देते जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन देते जाएगा तो ये नेगेटिव बन गया। उसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है स्टूडेंट्स? ये पॉजिटिव नहीं है, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव टर्मिनल इज एक्चुअली डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान में रखना। Since positive terminal is actually deficient of electrons and negative terminal is actually excess of electrons. क्या ये क्लियर हुआ? यानी ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ये लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ। हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन। चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एटोवर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल, इट विल बी ऑलवेज आउटसाइड। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes. हाँ सर। Now when you speak about with respect to your resistance students, let us go for a concept of simple resistance. Resistance को समझने के लिए students, simply we need to go for a concept of Ohm's law, which all of you all must be knowing it. Students, मुझे बताओ, George Simon Ohm put forward a relation for Ohm's law and what exactly said it? जैसे तुमने कॉपर वायर लिया स्टूडेंट्स, है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, तो क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव स्टूडेंट्स। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्रीड? Yes. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, व्हाट्स गोना हैपन? सो दीस इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड with the atoms of the conductor. Such an opposition, answer suna, such an opposition to the flow of electrons by the atoms of the copper conductor is called external resistance. And that is written by letter capital R. तो स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या? इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स एंड द अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ, इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अंदर कोलिशन हो रहा है। जितना जितना एवरेज टाइम ऑफ कोलिशन कम होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर किसी ने पूछा तो तुम क्या बोलोगे? इट्स अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर? इनसाइड द कॉपर वायर, बट आउटसाइड द सेल। स्टूडेंट्स, ये सेल है, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द कॉपर वायर, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Can you repeat it, sir? Resistance offered to the flow of conduction electrons,
obstruction offered to the flow of conduction electrons by whom? By atoms of the conductor is called the resistance of the conductor, and that is called as external resistance. जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट कम जाएगा. How is current resistance? Inverse variation है ना. तो जितना तुम ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, जितना टाइम ऑफ कोलिशन बढ़ेगा, जितना कोलिशन बढ़ेगा, एवरेज टाइम ऑफ कोलिशन भी बढ़ेगा. तो व्हाट हैपेंस? रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो व्हाट हैपेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? कम होगा. तो हमें ऐसे कंडक्टर सिलेक्ट करना है जहां पे तुम्हारा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, तभी जाके तो हम कॉपर यूज करते हैं. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उससे अच्छा कौन सा है? सिल्वर है, गोल्ड है. These are the ones, but we can't use them because of their corresponding melting point. At high temperatures, they might melt. That's the Current reason. cost also, no? Pardon? Sir, cost also is very high. Yes. So current and resistance are inversely proportional. ये तुम्हारा कौन सा? External resistance. अभी external resistance के अंदर भी कैसे? अगर तुम external resistance की बात करो तो कौन सा है? तो तुम तुरंत बोलोगे सर external resistance में भी एक होता है fixed resistance, एक होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो ध्यान से रखना ये सब तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, लेकिन अभी ये यूज होगा आगे. फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? तो तुम तुरंत बोलोगे सर जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमारे घर में हैं, जिसको ऑप्टिमम करंट चाहिए, जिसको एक फिक्स्ड करंट चाहिए, वो सारे फिक्स रेजिस्टेंस हैं. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है सर? जो We रेजिस्टेंस can adjust. जो चेंज होते हैं, वेरिएबल का मतलब चेंज हो गए. तो ये दो टाइप के स्टूडेंट्स. वेरिएबल में भी अननोन आता है. सर हमें मतलब जितना करंट चाहिए उतना हम रेजिस्टेंस रख सकते हैं ना? किसके लिए? वेरिएबल रेजिस्टर मतलब. हाँ, उसमें भी अननोन है और नोन है. एक की तुम्हें वैल्यू पता है और एक की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है. अननोन के लिए क्या एग्जांपल होगा? शायद बहुत दफे तुम लोगों ने सर्किट डायग्राम में ड्रॉ भी किया होगा स्टूडेंट्स. तुमने ऐसा कोई जिगजैग लाइन किया होगा और फिर ऐसा कुछ टच होता रहेगा. ये हुआ तुम्हारा अननोन, जिसको हम नाम देते हैं रियोस्टेट, और बीच में लिखते हैं RH. शायद तुम लोग ने 10वीं में पढ़ा होगा. ये है चौकी जो स्लाइड करता है स्टूडेंट्स. लेकिन इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है. ये अननोन रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू इज नॉट नोन टू यू. ये फिक्स रेजिस्टेंस है. ये वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, लेकिन वैल्यू नोन टू यू. ये क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स. सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखोगे? एन एरो क्रॉसिंग ऑन. यानी जब भी तुम जिगजैग लाइन देखोगे और एरो क्रॉस हो रहा है, तो वो उसका मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस बॉक्स है स्टूडेंट्स. रेजिस्टेंस बॉक्स है. क्या इसकी वैल्यू तुम्हें नोन है? हाँ. और उसकी वैल्यू वेरी हो सकता है स्टूडेंट्स. जब भी अगर सपोज तुम YouTube देखते हो या तुम गूगल करते हो और इसका डायग्राम देखोगे ना, रेजिस्टेंस बॉक्स, तो एक सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा स्टूडेंट्स. लेक्चर्स के बाद में देख लेना. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा और उसके ऊपर कीज होगी ब्लैक कलर की, और वो कीज के ऊपर सब वैल्यूज लिखी होती है. 10 ohms, 100 ohm, 1000 ohm, 10,000 ohm. स्टूडेंट्स, इट कैन हैव फ्रॉम 10 ohms टू फ्यू किलो ohms आल्सो. उतना तक का रेजिस्टेंस. यानी सिर्फ तुम्हें सिलेक्ट करना है, तुम्हें वो की को निकालना है और कॉर्ड्स को कनेक्ट कर देना है, बस वो वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया. लेकिन तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसलिए नाम दे दिया वेरिएबल. लेकिन वैल्यू इज नोन टू यू. ये है वेरिएबल, लेकिन वैल्यू इज नॉट नोन टू यू. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर किसी ने पूछा कैन यू गिव मी बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रियोस्टेट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? फैन रेगुलेटर. स्टूडेंट्स, घर के अंदर तुम्हारे जो फैन रेगुलेटर है वो रियोस्टेट. अगर तुम सपोज फैन को 1 पे रखते हो स्टूडेंट्स, तो क्या पंखा फास्ट घूमता है, स्लो घूमता है? तुम लोग ऐसे स्लो घूमता है. स्लो उसका मतलब अंदर जो मोटर है उसको ज्यादा करंट मिल रहा है, कम करंट मिल रहा है? कम. कम मिल रहा है. उसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है. जैसे तुमने पंखे को 1 से 4 पे किया,
फ्रेंड्स, जैसे तुमने पंखे को 1 से 4 पे किया तो क्या हुआ? तुमने रेजिस्टेंस कम किया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा, टॉर्क आना शुरू हो गया और पंखा फास्ट घूमने लगा। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रियोस्टैट, तो तुम्हारा आंसर होगा एग्जांपल विल बी अ रेगुलेटर। जैसे फैन रेगुलेटर है, या तुम्हारे घर के अंदर शैंडलर्स हो गए, डिमर्स। सपोज अगर तुम्हारा घर के अंदर हॉल होगा और हॉल के अंदर लाइट बिठाई हुई है, तो तुम्हारा एक रेगुलेटर होगा झूमर जैसे, जो तुमने उसको ऑन किया, ब्राइट किया तो ब्राइट लाइट देगी, फिर वापस ऑफ किया तो कम लाइट देगी। That's what we consider. यानी जब भी तुम रेजिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? Obstruction to the flow of electrons by the atoms of the conductor is called as the resistance offered by the conductor. What happens if the resistance increases? The current flowing through it will decrease. Such a resistance which is outside the cell but inside the copper wire is called as what resistance? External resistance. External resistance can be of different types we consider. Okay, that is we have fixed and we have variable. What is the unit of fixed or variable? Unit is always ohm. OHM. क्या ये क्लियर हुआ? Yes. Can I erase this now? No sir. सर बस हम 10th में तो बल्ब के वगैरह पढ़ते थे, इसमें कंडक्टर है ना सर, हाँ सर्किट में। हाँ। Done, friends? सर लास्ट में 1 मिनट। डन सर। Okay, sure. Sir, external resistance means that only na, by atoms. Yeah. Resistance by atoms. Yes, yes, yes. Resistance offered to the flow of electrons by the atoms of the conductor. Done? Sir, done. बोला ना। Okay, okay, listen now. Now listen carefully, students, okay? Now, today, students, इसके बाद में मैं एक last part करूंगा, internal resistance, okay?
because the network is, I feel like that it's very weak right now. I'm showing the very weak network for me. That is, the lines are tripping. मैंने दूसरा supporting system डाला, लेकिन I feel like that शायद collapse होगा. I'll finish with inter-resistance today. Okay, students, inter-resistance बता देता हूँ. ध्यान से सुनो students. ये जो electrons है, इनको opposition मिल रहा है, वो atoms कर रहा है. मुझे ये बताओ, यहाँ पे कौन move हो रहा है? Solution के अंदर कौन move हो रहा था? Sulfate ions and hydrogen ions. Students, are these ions? Are these ions? Huh, students? Yes. Are they charged particles? Yes. Are they in motion within the Yes. solution? Yes. That means, can I say charge in motion? Charge in motion leads to current. Is it clear? Yes. When this charge are motion, students, when these charges are in motion, are these charges are getting any obstruction? Are they getting any opposition? जब ये चार्ज मूव हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या इनको, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स अपोज कर रहा है ना, क्या या सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस जब ये सोल्यूशन के थ्रू अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास में जा रहे हैं, सल्फेट जा रहा है जिंक के पास, हाइड्रोजन जा रहा है कॉपर के पास, तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम पे क्या उनको कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है? हाँ सर. कौन अपोज कर रहा है? सर कौन इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स कौन अपोज कर रहा है? H2SO4 की molecule. H2SO4 की molecule. ये तारिक क्या बोल रहा तारिक? H2SO4 की molecule. Absolutely correct. See, Tariq knows it. Tariq आंसर नहीं देता, लेकिन उसको पता है. Students, मुझे बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ students, what is degree of dissociation? Now students, do you know what is degree of dissociation? Chemistry में पढ़ा होगा. The number of molecules dissociated to the total number of molecules present in the inside the solution. क्या ये clear हुआ? हाँ सर. The number of molecules dissociated to the total number of molecules present inside a given solution is called the degree of dissociation. अभी ये सोचो ना कि सोचो मैंने अगर सपोज ये सल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने सोल्यूशन लिया है उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या 100 मॉलिक्यूल्स में से सारे 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए? नहीं ना. सपोज अगर मैं बोला 100 में से 70 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, लेकिन 30 मॉलिक्यूल्स आर स्टिल इन द मॉलिक्यूलर स्टेट intact. Those 30 molecules will try to obstruct those ions inside the solution. क्या ये clear हुआ students? Okay sir. Such an opposition to the flow of current, such an opposition to the flow of current inside an electric cell by the electrolyte is called internal resistance measured in ohms. Such an opposition to the flow of ions, such an opposition to the flow of ions by the electrolyte inside the solution is called internal resistance of a cell. यानी students, एक होता है external resistance, एक होता है internal resistance. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के बाहर की तरफ होगी, यानी वायर के अंदर होता है वो रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस वायर में नहीं होता है, वो सेल के अंदर होता है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसको हो रहा है? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इंटरनल रेजिस्टेंस किसको हो रहा है? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ आयंस. हु अपोजेस इट? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट. सपोज मैंने अगर ड्राई सेल लिया है तो ड्राई सेल के अंदर पेस्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट होगा. मैं यहाँ पे सोल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा. यहाँ पे कौन अपोज कर रहा है? एटम्स. So there are two different resistances. One is external, one is internal. External is capital R, internal is small r, and both of them are measured in ohms. क्या ये clear हुआ students? Is this clear students? All of you? Yes sir, clear. Okay, students. Today we'll wind up over here itself only. Okay. Next lecture will be continuing from here onwards. लेकिन please students ये थोड़ा सा read करके बैठना. Theoretically try to go for it. Are you getting it? Yes. In the next lecture. Okay, students. Yes sir. Okay. Chalo, bye. Bye sir, thank you.